Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today in this video section we are going to continue our video series about the that is microbiology, and microbiology we are talking here about the viruses. And today in this video lecture we will talk about the virus multiplication, means that how viruses multiply, वायरस अपनी प्रजनी जो है आगे फर्दर और वायरसेस वो कैसे बनाते हैं. Now this virus multiplication is simply occurred by two phases, that is simply two cycles. First is lytic and second is lysogenic. The lytic cycle is also known as syntemperate or virulent type. On the other hand, this lysogeny is known as avirulent and temperate. Why these names are them, we will see it later now. The first here we will talk about the lytic cycle. The first point about the lytic cycle is that it is mostly occurred in, that is found in mostly in T even phases. As we already know that two types of bacteriophages, T even and T odd phases, and it's found in T even phase. The second point about the lytic cycle is that the host metabolic machinery is hijacked here. Is it hijacked? It is by viral genome. Is it? It is hijacked by this viral genome, which directs the production of viral proteins and nucleic acid, means new DNA plus proteins are formed inside the host cell. Is it? Then these newly synthesized viral proteins and nucleic acids spontaneously assemble. Is it? Now assembly, that is these proteins and DNA assembly occurs with the help of special kind of proteins or molecular proteins known as chaperones. Is it? These are known as molecular chaperones or helper proteins. What is the function of these molecular chaperones or proteins? Simply to assemble these newly synthesized protein and DNA molecules. After the assembly, the host cell is induced to lysis itself, means this host cell now bursts. इस host cell में अगर that is phages बने होंगे, now ये burst हो जाएगी यहाँ पर due to lysozymes वो हम देखेंगे, and these viral particles are released outside. Is it? Or some viruses release these viral particles with the exocytosis also. This is about this viral multiplication. And another important point about the lytic cycle is that the DNA is inserted here inside the cytoplasm of host. होस्ट के साइटोप्लाज्म में ये डीएनए क्या है, इंसर्ट होता है, ठीक है ना, नॉट इन द डीएनए ऑफ द होस्ट. इज इट? दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द लिटिक एंड वायरुलेंट टाइप ऑफ साइकिल, ठीक है ना. जैसे यहाँ पर न्यू वायरस पार्टिकल बनते हैं, असेंबल हो जाते हैं, फिर रिलीज हो जाते हैं, वो यहाँ पर जरा भी नहीं रुकते हैं. इज इट? ऑन द अदर हैंड, if we look about that is this lysogenic cycle, this lysogenic cycle is quite different from this lytic cycle. In this cycle, that is the host cell are not induced to lyse itself, that is not lysis. Lysis यहाँ पर नहीं होगी. The second point is that but instead the viral genome integrated into the host DNA. Suppose ये है host DNA and this is viral DNA, ठीक है ना, viral, that's foreign DNA. Now this viral or foreign DNA is introduced directly into the host DNA. But on the other hand, in lytic cycle there that is DNA was introduced inside the cytoplasm. After that क्या होगा, that this DNA remains here as a provirus. ये यहाँ पर एक्ट करेगा as a provirus, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या रहेगा, as a provirus. provirus अगर हम देखें इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज, अदर वायरसेस को हम बता सकते हैं that is provirus. Then इसके बाद क्या होगा, this DNA replicates. Is it? This DNA replicates along with this host DNA. Is it? And pass on to the daughter host cell. जो daughter host cell यहाँ पर बनेगी उनमें भी ये वायरल जीनोम इंट्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है ना. एंड क्या होगा,
The virus can remain dormant for several generations until some stimuli makes it active and induce enter to lytic phase. Means this phase is not permanent or particularly lysogenic. It can turn into the lytic cycle due to some that is uh, uh, that is some जो होते हैं stimuluses like UV rays और सम हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूवी रेज दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ठीक है ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एटसेट्रा इंड्यूस दिस सेल टर्न इनटू द लिटिक साइकिल ठीक है ना एंड यहाँ पर फिर जब लिटिक साइकिल से ये फिर अगेन लिटिक साइकिल में आ जाएंगे ठीक है ना एंड जो यहाँ पर ये प्रो वायरस रहते हैं फॉर लॉन्गर टाइम इट कैन कॉज द इफेक्ट्स known as cytopathic effects, that is cytopathic effects. What is cytopathic effect is the degenerative effects which is caused by the proviruses जो यहाँ पर वायरस डॉर्मेंट रहता है फॉर अ लॉन्गर टाइम इज नोन एज साइटोपैथिक इफेक्ट्स. दिस इज अबाउट द लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल. इन्हीं दो साइकिल्स की वजह से क्या होता है वायरस रेप्लिकेट होते हैं ठीक है ना. नाउ दिस वायरस इज जो हमने देखा इनकी अब ये दैट इज रेप्लिकेशन वो होती कैसे है दरअसल वो हम यहाँ पर देखते हैं. पहले हम देखते हैं रेप्लिकेशन बाय लिटिक साइकिल ठीक है ना. लिटिक साइकिल से ये रेप्लिकेशन कैसे होगी ये हम पहले देखते हैं. जैसे आपको पता ही है अब टी इवन फेजेस में होगी. इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. दैट्स फर्स्ट स्टेप इज दैट इज एड्सॉर्प्शन और अटैचमेंट. Adsorption or attachment. What is adsorption and attachment? Let me tell you. In this step, the phage attached itself to the host receptor site on the bacterial cell wall. Suppose this is a bacterial cell wall. This is host cell, and this is the बैक्ट्रोफाज ठीक है ना. ये फैक्ट्रोफाज अब यहां पर क्या होगी इसकी एड्सॉर्प्शन और अटैचमेंट हो जाएगी इस सेल वॉल से बाय मीन्स ऑफ दिस टेल फिब्रिल्स. दिस अटैचमेंट occurs by means of this tail fibrils. Is it? This is the first point. And after that the specific receptor sites are present where diaminopicoleic acid is absent. Where this particular amino acid is absent होगा where this now ये अटैच हो जाएगा उस साइड पर या जहां पर ये डायमाइनोपाइकोलिक एसिड एब्सेंट होगा ठीक है ना. अब इसके बारे में अगर मैं आपको और एक पॉइंट बताऊं दैट दिस अटैचमेंट ऑकर्स ड्यू टू सम इंटरेक्शंस ठीक है ना. ये इंटरेक्शंस हो जाएंगी यहाँ पर. इंटरेक्शंस किस किस में हो जाएगी दैट इज एक होस्ट की एंड दैट इज फाज की ठीक है ना. क्या क्या होगी दैट इज फर्स्ट होगा अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स इन द टेल फिब्रिल्स ठीक है ना. इसकी टेल फिब्रिल्स जो होंगी दैट इज टेल फिब्रिल्स कंटेन अमाइनो ग्रुप ठीक है ना. एंड होस्ट की अब सेल वॉल पर क्या होगी नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ठीक है ना. नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां पर होगा सेल वॉल ऑफ होस्ट ठीक है ना. ये अमाइनो एसिड ग्रुप जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा ये नेगेटिवली चार्ज्ड होगा. इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगी इसी के साथ ही अटैचमेंट हो जाएगी ठीक है ना. नाउ सेकंड setup about is that is lytic cycle is digestion of bacterial cell wall. That is digestion of
bacterial cell wall. Now simply as this indicates here, cell wall and digestion means digestion होगी अब यहाँ पर, ठीक है ना. Now in this step the tail of the virus come in contact with the bacterial cell wall. Suppose this is bacterial cell wall and this is bacterial tail. This tail comes in contact with the bacterial cell wall and ये कैसे होगी, थोड़ी सी बाइंडिंग होगी यहाँ पर, सॉरी बैंडिंग होगी यहाँ पर. इस बैंडिंग की वजह से अटैच हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना. जब ये बैंडिंग होगी द टिप ऑफ टेल कंटेन्स लाइसोजाइम्स, ठीक है ना. दिस इज टिप ऑफ टेल. दिस टिप ऑफ टेल कंटेन लाइसोजाइम्स. These lysozymes dissolve cell wall and weaken it. They weaken or dissolve this cell wall now from here. यहाँ से सेल वॉल क्या हो जाएगी, ये होस्ट की सेल वॉल है, ये यहाँ पर वीक और डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना. एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर ये कांटेक्ट होगा. द लाइसोजाइम्स फॉर्म अ होल इन द म्यूकोपेप्टाइड लेयर हियर. दे फॉर्म्स होल where they get attached, they forms hole on the cell wall. The attachment of a number of phages may cause lysis of the bacterial cell without infection. Is it? No infection occurs here. कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं होगा इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओनली इस वक्त क्या होंगे, ओनली होल्स आर ड्रिल्स आर फॉर्मड हियर, ठीक है ना. दिस इज द डाइजेशन ऑफ सेल वॉल. आफ्टर द डाइजेशन दैट इज नाउ थर्ड स्टेप पर हम चलते हैं. एंड दिस third step here is that is injection of DNA. Injection of DNA, as the name indicates, now DNA is injected into the host DNA. In this step the tail sheet contracts. Suppose again this is the bacterial cell and this tail fibrils here and this is here neck or collar, you can simply say. This contracts, ठीक है ना. इसकी कंट्रैक्शन हो जाएगी. कंट्रैक्शन में आपको पता है इसका साइज कम हो जाता है. सपोज 1/2 हो जाएगा इसका साइज. अगर इतना था अब ये इतना ही इसका साइज रह जाएगा. Due to the contraction the tail sheet forces this core. Now due to this contraction this tail sheet contracts forces the core to penetrate inside the host cell, ठीक है ना. अब ये पेनिट्रेट हो जाएगा होस्ट सेल लाइक ए नीडल. लाइक ए नीडल, जैसे हम नीडल से इंसर्ट करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, वैसे ये अब जैसे कंट्रैक्ट होगी और ये डीएनए यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा. जैसे पहले यहाँ पर होल्स बने होंगे डाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सेटअप में, ठीक है ना. इसके बाद क्या होगा, ये डीएनए अब आ जाएगा होस्ट के साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना. एट दिस पॉइंट क्या होगा, दैट इज ये अब डीएनए यहाँ पर था, ये डीएनए अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना. ये डीएनए जब यहाँ पर आ जाएगा तो बाहर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें रह जाएगा, दैट इज टेल फिब्रिल्स यहाँ पर रह जाएंगी, यहाँ पर हेड रह जाएगा एंड दिस इज नोन एज गोस्ट सेल, ठीक है ना. इसको हम क्या कहते हैं, गोस्ट सेल. व्हाट इज गोस्ट सेल, जब दैट इज वायरस अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेट इंजेक्ट करेगा इनसाइड द होस्ट सेल, द रिमेनिंग कवर आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल इज नोन एज गोस्ट सेल. एंड दिस वाज दिस थर्ड स्टेप. एंड अब हम फोर्थ स्टेप की ओर चलते हैं. द फोर्थ स्टेप हियर इज सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स. Synthesis of early proteins. Now synthesis of early proteins takes place here. The phage DNA takes control now the cellular activity of the host cell. Now this is the host DNA, viral DNA, and this is the host DNA. Now this viral DNA takes its control over the cellular activity of host after it is entry inside the cell, and the enzymes needed for this
सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स, दैट इज जो एंजाइम्स यहाँ पर हमें रिक्वायर होंगी उनकी सिंथेसिस अब स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो यहाँ पर अब प्रोटीन्स बनेंगे, दिस प्रोटीन्स आर नोन एज अर्ली प्रोटीन्स। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स बनेंगे, दैट इज डीएनएज एंड RNAs. DNAs and RNAs are the enzymes, is it? DNAs, RNA are the enzymes which degrade DNA and RNA as well. This DNA degrades DNA and this RNA degrades RNA, is it? That time क्या होगा जब ये DNAs, RNAs एंजाइम यहाँ पर बनेंगे, दैट्स अर्ली प्रोटीन्स। अर्ली प्रोटीन्स अब कौन कौन से हैं, DNA, RNA। जब ये इस सेल में बनाएंगे, इस सेल में इस वक्त कोई भी दैट इज वायरल पार्टिकल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नो वायरल पार्टिकल इज डिटेक्टेड। इस वक्त यहां पर कोई भी वायरल पार्टिकल डिटेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि यहां पर अभी अर्ली प्रोटीन बन रहे हैं। एंड इस फेज को हम क्या कहते हैं, सो इस स्टेज को हम एक नाम देते हैं, दैट इज इक्लिप्स फेज। इक्लिप्स फेज, व्हाट इज दिस इक्लिप्स फेज? इस इक्लिप्स फेज में कोई भी वायरल पार्टिकल सेल में, होस्ट सेल में नहीं बनेगा। ऑन दी डीएनए एंड आरएनएस, दैट इज अर्ली प्रोटीन्स, उनकी सिंथेसिस होगी, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन्स के बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। The fifth step here is, that is synthesis of viral DNA, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, that is viral nucleic acid. Now in this step, synthesis of DNA takes place. How this DNA synthesis takes place? It's simply that the phage DNA replicates start after the latent period. Latent period is period during which early proteins were synthesized. जिस पीरियड में अर्ली प्रोटीन बने उसको हम कहते थे इक्लिप्स फेज, और लेटेंट पीरियड भी हम इसे कह सकते हैं। इट लास्ट्स फॉर 20 मिनट्स एट लीस्ट। आफ्टर दैट हमने डीएनए आरएनए जो बन गए थे वो अब डिग्रेड करेंगे होस्ट डीएनए को। सपोज ये होस्ट डीएनए, अब इसकी दैट इज डिग्रेडेशन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। ड्यू टू डीएनए एंजाइम्स की वजह से अब ये होस्ट का डीएनए क्या है, डिग्रेड हो जाएगा। एंड द न्यूक्लियोटाइड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए आर यूज्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दैट्स रेप्लिकेशन ऑफ फॉज डीएनए, इज इट। This synthesis takes place very fast, ठीक है ना। इसमें बहुत फास्ट होती है ये स्टेप। एंड इसमें क्या होगा, सेल में हमें कुछ टाइम के बाद ही 100 to 200 फॉज डीएनएज मिलेंगे, ठीक है ना। अब सिंथेसिस ऑफ वायरल डीएनए में क्या होता है, जो हमने पहले ही वायरल दैट इज डीएनए एंड आरएनएज एंजाइम्स बनाए थे, वो क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे अब होस्ट सेल वॉल को। एंड वही डीएनए फिर जो फ्रेगमेंट्स होंगे अब नए डीएनए के, वही फिर फ्रेगमेंट इस्तेमाल होंगे नया डीएनए बनाने में। 60s सिंथेसिस ऑफ लेट प्रोटीन्स। नाउ लेट प्रोटीन्स अब यहां पर सिंथेसिस होंगे। इन दिस स्टेप the new proteins synthesized after the phage DNA are known as the late proteins, is it? The late mRNA produces late proteins, as I already told you, that's nucleic acid की synthesis हो जाएगी, पिछले स्टेप में मैंने आपको बताया था। now जो यहाँ पर mRNA बनेगा, that is mRNA, now this mRNA forms that is late proteins। इसकी जब ट्रांसलेशन होगी यहाँ पर, ट्रांसलेशन, by this translation late proteins are synthesized, and the late proteins include that is protein coat, tail fibrils, and that is lysozymes,
ठीक है ना, लाइसोजाइम्स अदर कंपोनेंट्स यहाँ पर इस लेट प्रोटीन्स में बनेंगी। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा, ये सभी स्टेप्स जो होंगे ये किस में होगा, सिंथेसिस ऑफ लेट प्रोटीन्स में। मींस अब जो यहाँ पर प्रोटीन्स बनेंगे, दीज प्रोटीन्स आर सिंपली नोन एज लेट प्रोटीन। नाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन दी लेट एंड अर्ली प्रोटीन्स। अर्ली प्रोटीन्स में हमें क्या बनता था, ओनली डीएनए एंड आरएनएज, एंड लेट प्रोटीन में हमें क्या बनता है, प्रोटीन कोड्स बनते हैं, टीएल, फिब्रिल्स, लाइसोजाइम्स एटसेट्रा। अब इस सेटअप में अगर मैं आपको और एक पॉइंट बताऊं, दैट यहाँ पर क्या होता है, दैट T4 फाज जो होता है इसके पास ओनली 70 to 100 जीन्स होते हैं। कितने, 70 to 100 जीन्स। आउट ऑफ द 70 to 100 जीन्स ओनली 15 जीन्स आर यूज्ड फॉर द मॉर्फोजेनेसिस। मीन्स जो मॉर्फोजेनेसिस यहाँ पर होगी इसके लिए हमें ओनली 15 ही जीन्स की रिक्वायर होगी। अमंग दीज 15 दैट इज 21 genes are required for the formation of tail। टेल बनाने के लिए हमें 21 जीन्स चाहिए, एंड 18 जीन्स हमें चाहिए दैट इज हेड बनाने के लिए, एंड हमें चाहिए फिर 6 जीन्स ओनली, वी रिक्वायर 6 जीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेल fibrils। Is it? Only 70 to 100 genes are present. Among these, 50 genes are required for morphogenesis. Among the 15, 21 required for tail formation, 18 for head formation, and 6 for tail fibril formation. Now, assembly or maturation of newly formed viruses. As your name indicates, that's maturation or assembly, means assemble होगा। Now in this step, the phase assembly is sequential। means ये phase assembly क्या होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताना है अभी, ये जो सेल में दैट इज सिंथेसिस ऑफ लेट प्रोटीन्स होती हैं, न्यूक्लिक एसिड होती हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। यहाँ पर एक स्टेप में यहाँ पर हेड बनेगा, दूसरी जगह टेल फिब्रिल्स बनेंगे, तीसरी जगह लाइसोजाइम या एंडोलाइसिन्स बनेंगे। ठीक है ना, कॉलर बनेगा एक स्टेप में। नाउ अब ये सभी चीजें किस में बनेगी, इनसाइड द सेम होस्ट सेल। नाउ वी हैव टू असेंबल ऑल दीज कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ वायरस। ठीक है ना, हमें अब इनको असेंबल करना है एंड न्यू वायरस पार्टिकल्स बनाने हैं। तो क्या होगा, सिंपली इसमें ये जो सेटअप्स हैं यहाँ पर ये असेंबली होगी, दिस असेंबली इज सीक्वेंशियल, मीन दिस होल प्रोसेस इज सीक्वेंशियल। ठीक है ना, यहाँ पर ये नहीं होगा पहले टेल फिब्रिल्स लाइसोजाइम्स अटैच हो जाएंगे फिर हेड अटैच हो जाएगा। इस स्टेप में पहले क्या होता है, पहले हेड अटैच होता है, फिर दूसरे स्टेप में अगर हम देखें फिर टेल मिलती है, फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, टेल फिब्रिल्स अटैच होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह सीक्वेंस में ये वायरस पार्टिकल जो है दैट असेंबल हो जाते हैं, एंड दिस असेंबली इज कोडेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन नोन एज chaperones। As I already told you, these are molecular chaperones, special kind of proteins which is used for the assembly of these viral components. Now these viral components are sequentially added and new virus particles are formed। ठीक है ना, and this step is known as maturation। इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन। मीन्स जो ये वायरस कंपोनेंट्स बने इनको हम अब क्या करेंगे, सीक्वेंशियली ये मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है ना। नाउ अब हम अगर देखते हैं 8th स्टेप इज दैट इज रिलीज ऑफ वायरस। रिलीज ऑफ वायरस। नाउ व्हाट इज दिस स्टेप दैट इज रिलीज ऑफ वायरस? इन दिस स्टेप that is the phase lysozymes or endolysins cause weakening of bacterial cell walls। मीन जो अब यहाँ पर ये वायरल कंपोनेंट्स असेंबल हो गए
These viral components, as I already told you, contain some lysozymes. These lysozymes attach to the cell wall. ठीक है ना. Now this cell wall ruptures. ठीक है ना. इस सेल वॉल की क्या हो जाएगी, सपोज यहाँ पर इसकी रैप्चर हो जाएगी ये सेल वॉल. आफ्टर रैप्चर दीज वायरल पार्टिकल्स नाउ रिलीज आउट. ठीक है ना. ये जहां जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं फिर ये जरा भी यहाँ नहीं रुकते हैं. सो व्हाट हैपन्स, दीज वायरल पार्टिकल्स आर रिलीज्ड आउट फ्रॉम द होस्ट सेल. ठीक है ना. एंड क्या होता है, फिर ये लाइसोजाइम्स अटैच हो जाते हैं फिर इस टिप ऑफ द tail fibrils of the virus. And this was the whole about the lytic cycle. And lytic cycle हमने देखा 8 स्टेप्स में होती है. इस तरह नए जो वायरल पार्टिकल्स हैं इनकी रेप्लिकेशन होती है. नाउ अब हम देखते हैं दैट वायरल रेप्लिकेशन कैसे होती है बाय मींस ऑफ लाइसोजेनिक फेज. वायरस रेप्लिकेशन बाय लाइसोजेनिक साइकिल. लिटिक साइकिल हमने देखा, अब हम लाइसोजेनिक साइकिल. लाइसोजेनिक में हमने क्या पहले कहा था, ये टी और फॉज में हमें देखने को मिलती है. इसके बाद ये जो डीएनए है ये इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट डीएनए के साथ एंड एक्ट्स एज अ प्रो वायरस. ये हमने थर्ड स्टेप बताया था. फिर जब यहाँ पर डीएनए होस्ट बनते हैं ये यहाँ क्या देते हैं, डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है ना. पर जब इनको कभी कोई स्टिमुलस मिलता है उसकी वजह से ये दिस दैट इज लाइसोजेनिक साइकिल अगेन टर्न्स इनटू लिटिक साइकिल. इज इट. नाउ अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज हियर दैट इज एड्सॉर्प्शन. This adsorption is quite same as lytic cycle. What happens in this cycle, that's bacterial cell wall and injection of DNA into the host cell are almost simple as I already told you. But in this case tail जो होती है, tail is not contractile. In this case the bacterial tail is not contractile and adsorption जब यहाँ पर हो जाएगी then second step occurs here, that's integration of viral DNA into the host genome. Integration of viral DNA into host genome. This is the second step, integration of viral DNA into the host genome. In this step, the viral DNA integrates into the host genome with the help of an enzyme simply known as integrase. This attachment here occurs with the help, वहां पर क्या होती है लिटिक साइकिल में, वहां पर इंट्रैक्शंस होती थी COOH ग्रुप एंड अमाइनो एसिड ग्रुप के दरमियान. बट यहाँ पर क्या होगी, दिस occurs with the help of enzyme known as integrase. This is important enzyme integrase. It helps this viral particle to get attached with the host cell. After that it inserts its viral DNA into the host DNA. ठीक है ना. यहाँ पर DNA हो जाएगा and DNA acts as a pro virus as I already told you, and this pro virus is multiply here and this is inherited into the डॉटर सेल्स. ठीक है ना. एंड जो न्यू डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें भी ये वायरस हमें देखने को मिलेगा. ठीक है ना. दैट इज इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज बिहेव करेंगे एज अ लाइसोजेनिक बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया नाउ बिहेव्स एज अ लाइसोजेनिक बैक्टीरिया. इज इट. एंड ये प्रो वायरस यहां पर रहेगा फॉर several generations. ठीक है ना. it stays here for several generations. that's this provirus अब इस host cell में for several generations में रहेगा. now here is another point, that is it's known as induction.
Induction. What happens in this induction step? That is, certain inherent factors like UV rays, like X-rays, and hydrogen peroxide, or some environmental factors induce this prophage, जो यहाँ पर ये prophage बनेगा, induce this prophage to change into virulent form. As in the beginning of this video, I told you that this lysogenic cycle is not permanent. Is it? ये permanent नहीं होता है. It turns into the virulent form, and this virulent form is due to these UV rays, X-rays, hydrogen peroxide, or some environment factors maybe induce this that is lysogenic cycle to change into virulent form. Is it? And this step is simply known as induction. And the last step is here, that is excision. And this excision is last step. In this step, that is excision, the first DNA separates out from the bacterial genome. Is it? Suppose this is a bacterial genome, that is provirus. This separates out from this bacterial genome with the help of an enzyme known as enzyme and this enzyme is known as excigenase. This excigenase enzyme is responsible for the separation of first DNA from the bacterial DNA, and in this way now this turns into the latex cycle and produce new fudge. ठीक है ना, ये अब लेटिक साइकिल में चला जाएगा यहाँ पर, फिर जो मल्टीपल यहाँ फॉज पार्टिकल्स बन जाएंगे. ऑलरेडी इनकी इंसिशन हुई है, दैट इज इंडक्शन हुई है ड्यू टू यूवी रेज, एक्स रेज, एंड इनकी वजह से अब फिर यहाँ पर ये सेल यहाँ पर डिग्रेड हो जाएगी and this viral particle is now released out, and this is whole about lytic and lysogenic cycles. Now let me show you it with this picture. See here, this is bacteriophage here, and here attachment or injection of viral genome into the cell occurs. अब ये वायरस यहाँ पर बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए यहाँ पर इंजेक्ट करेगा इनसाइड द होस्ट सेल. देन डिग्रेडेशन ऑफ होस्ट सेल. यहाँ पर अगर आप देखो वायरल जीनोम ये सर्कुलर था, हमको पता है ये सर्कुलर होता है. अब इसकी डिग्रेडेशन हुई है यहाँ पर. आफ्टर डिग्रेडेशन के बाद अगर आप यहाँ पर देखो क्या हुआ है, दैट इज यहाँ पर अब रेप्लिकेशन ऑफ वायरल जीनोम हुआ. मीन्स यहाँ पर हेड बना है, टेल फिब्रिल्स बने हैं, यहाँ पर कॉलर बना है, एटसेट्रा. यहाँ पर एंजाइम्स बने हैं. अब इनकी क्या हो जाएगी, असेंबली हो जाएगी, और एंड उसके बाद रिलीज. जब ये असेंबल हो जाएंगे, यहाँ पर आप देखो ये सेपरेट हैं, देन यहाँ पर असेंबल हो गए हैं, देन असेंबली हो जाने के बाद ये रिलीज हो जाएंगे, एंड रिलीज हो जाने के बाद यहाँ पर ये न्यू वायरस जो है फिर से अटैक करेंगे. एंड इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपली दैट इज हियर, दैट इज दिस इज द फॉज infects a cell, and the forged DNA becomes incorporated in the host genome here, and this is the lysogenic cycle. यहाँ पर क्या हुआ है, ये इंटीग्रेट डायरेक्ट डीएनए में हो गया है into the host cell, then cell divides and the prophage DNA is passed into the daughter cells. अब देखो ये daughter cells यहाँ पर ये जो daughter cell भी बनी है, इनमें भी ये डीएनए इंटीग्रेट हो गया है. आफ्टर इसके बाद क्या हो जाएगा, सेम जैसे लिटिक साइकिल में हुआ था, द फेज डीएनए रेप्लिकेट्स एंड द फेज प्रोटीन्स आर मेड. यहाँ पर फेज प्रोटीन्स फिर बने हैं,
अब इनकी नौ फेज प्रोटीन्स आर असेंबल्ड, अब इनकी असेंबली हो जाएगी, देन सेल लाइसिस, जैसे कुछ इनको स्टिमुलस इंजेक्शन स्टेप में हमने पढ़ा था, एक्स रेज, यूवी रेज, हाइड्रोजन peroxide or some environment factors change this cycle to turn into the Leydig cycle. Hence, the breakage of cell occurs again with the help of lysozymes present into the tail fibrillus, and new viral particle जो है अब release हो गए होंगे, and this is whole about the lytic and lysogenic cycle.